Good morning, students. Today I shall teach you a poem, Apostrophe to the Ocean. This is a poem about ocean. So I start this poem. Before starting the poem, I want to tell you about the poet, a bit about the poet. This poem is written by George Gordon Byron, who was born in 1788 and died in 1824 in London. He was author of Don John, a satirical novel in verse that is considered one of the greatest epic poems in English written. He was also famous for romantic period in English literature. And before starting the poem, I want to say you what is saying in this video. In this video, we are going to annotate Lord Byron's Apostrophe to the Ocean, a poem in which the speaker expresses his emotional concession to the sea. We are also going to consider the way in which the poem develops the persona that the poet had created for himself, both as a celebrity and a poet. But first, some context and background to the poem is a bit misleading. Each stanza has a rhyming scheme of AB, AB, BC, BC, C, a very challenging rhyming scheme. It is a very challenging rhyming scheme that is presented by George Gordon. In reality, Byron worked hard on his poetry revising and rewriting. In reality, Byron worked hard on his poetry, revising and rewriting each line until he was satisfied that it was perfect. Now, start the poem. Stanza number 1. रीड अ पोएम अबाउट द पावर ऑफ ओशियन. इस पोएम में हम ओशियन की जो पावर है उसके बारे में बेटा डिस्कस करेंगे. देयर इज़ अ प्लेजर इन द पाथलेस बोर्ड. There is a pleasure in the pathless boats. There is a rapture on the lonely shore. यहाँ पर ना here the poet wants to express the pleasure of himself. The poet says that he was most happy. He was most pleasure in pathless boats means he feels enjoyment of the forest. मतलब वो जो फॉरेस्ट में एलोन जो फॉरेस्ट में वो फील करता है, हैप्पीनेस को फील करता है, उसको यहाँ पर शेयर कर रहा है. ही वॉज फीलिंग एन्जॉयमेंट ऑफ द फॉरेस्ट. देयर इज़ अ रैप्चर ऑन द लोनली शोर बिकॉज he was lonely at the shore and still he can enjoy and feel extreme happiness. There is society where none is introduced. यहाँ पर बेटा there is a society where none introduced. यहाँ पर वो society भी नहीं है, मतलब there is nobody to disturb him, to disturb his pleasure. मतलब यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है जो उसके pleasure को disturb करे. By the deep sea and the music in its roar, I love not man the less but nature more. Here the poet says that कि बाय द डीप सी एंड म्यूजिक इन इट्स रोअर, कि वो जो समुद्र में इन द ओशियन जो वेव्स लहरें जो होती हैं वो उठती हैं तो उसमें उसे म्यूजिक का साउंड सुनाई देता है. आई लव नॉट मैन एंड द लेस. यहाँ पर जो ओशियन है वो बता रहा है द ओशियन वांट्स टू फील हिज फीलिंग्स दैट ही डज नॉट लव मैन, कि वो व्यक्ति से प्यार नहीं करता बट नेचर मोर. लेकिन वो जो राइटर है द writer loved the nature very much. The writer loves the nature very much. जो राइटर है वो नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार करता है. From these our interviews in which I steal from all I may be or I have been before to mingle with the universe and feel what I can never express yet cannot or conceal. Here the poet wants to say that यहाँ पर पोइट जो है वो बताना चाहता है कि ही डिक्लेयर हिज मीटिंग विद नेचर ऑन पार्टिकुलर पॉइंट. तो यहाँ पर वो जो इंटरव्यू से मतलब है बेटा डिक्लेयर अ मीटिंग
द मीनिंग ऑफ इंटरव्यू, डिक्लेयर अ मीटिंग। यहाँ पर जो द पोइट है वो बता रहा है कि ही डिक्लेयर द मीटिंग विद हिज नेचर। वो द पोइट वांट्स टू से दैट ही वाज बिजी इन द मीटिंग विद नेचर, कि वो किसके साथ मीटिंग कर रहा है, वो किसके साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, ओशन के साथ, सी के साथ। फ्रॉम ऑल आई मे बी और हैव बीन बिफोर टू मिंगल मिक्स द यूनिवर्स, मतलब ही लाइक टू मिक्स विद यूनिवर्स, ही लाइक टू मिक्स विद नेचर, वह नेचर के साथ, यूनिवर्स ब्रह्मांड के साथ, मतलब प्राकृतिक जो चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके साथ वो मिंगल मीन्स बेटा मिक्स होना, क्लोज होना। ही वॉज वेरी क्लोज टू नेचर, वो नेचर से बहुत ज़्यादा क्लोज होना पसंद करता है। एंड फील वॉट आई कैन नेवर एक्सप्रेस, और जो फीलिंग्स वो फील करता है अपने अंदर, रियलाइज़ करता है जो फीलिंग्स को, उन्हें जो पोएट है वो कह रहा है कि मैं उनको एक्सप्रेस नहीं कर सकता। येट कैन नॉट ऑल कंसील, और यहाँ तक कि मैं इसको, कंसील मीन्स होता है हाइड, यहाँ तक कि मैं इनको छिपा भी नहीं सकता हूँ। मतलब उसे इतनी खुशी मिलती है नेचर के पास आने में, नेचर की चीज़ों से क्लोज होने में, कि उन फीलिंग्स को ना तो वो शेयर कर पा रहा है और नाइदर ही कैन एक्सप्रेस या शेयर हिज फीलिंग्स नॉर हाइड फ्रॉम अदर्स, ना तो वो उनको एक्सप्रेस कर पा रहा है, ना ही दूसरों से छिपा पा रहा है। इन नेक्स्ट स्टेंजा, एक्सटेंजा नंबर 2, रोल ऑन दो डीप एंड डार्क ब्लू ओशियन रोल। रोल ऑन से मीन्स है बेटा टू फ्लो, टू फ्लो। तो यहाँ हियर द पोइट वांट्स टू से दैट द ओशियन इज फ्लोइंग कंटिन्यूस, जो ओशियन है द सी इज फ्लोइंग कंटिन्यूसली, दो डीप एंड डार्क ब्लू ओशियन, जो गहरा और ब्लू पानी है उसका, ओशियन का, वो कंटिन्यूस क्या होता जा रहा है, फ्लो होता जा रहा है। 10,000 फ्लीट्स स्वीप ओवर दी इन वेन, मतलब कहना चाहता है, इट मीन्स बेटा कि अगर ओशियन में, यदि समुद्र में 10,000 फ्लीट स्वीप, मतलब 10,000 शिपों को, फ्लीट्स या ग्रुप ऑफ शिप होता है बेटा, तो 10,000 शिपों को, 10,000 जहाज़ों को एक साथ चलाया जाए तो भी इस पर कोई अफेक्ट नहीं होगा ऑन द ओशियन। ओशियन इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द 10,000 फ्लीट्स ऑफ शिप, मतलब 10,000 जहाज़ भी एक साथ ओशियन में चलाए जाएं तब भी उसके सरफेस पर किसी प्रकार का कोई क्या नहीं होगा, इफेक्ट नहीं होगा। मैन मार्क्स द अर्थ विद ruin, हियर द पोइट वांट्स टू से दैट कि मैन हैव नॉट कंट्रोल द कंटिन्यूस टू फ्लो, मतलब यहाँ पर द पोइट कहना चाहता है कि कितनी भी पावर लगा दी जाए, कुछ भी कर दिया जाए, लेकिन उसके फ्लो को हम नहीं रोक सकते। मैन मार्क्स द अर्थ विद ruin हिज कंट्रोल, मतलब व्यक्ति ने, इट मीन्स जो व्यक्ति है उसने अर्थ पर अपना कंट्रोल कर लिया है, वहाँ उसने काफ़ी डिस्ट्रक्शन किया। रूइन होता है डिस्ट्रॉय कर देना, बर्बाद कर देना, तो यहाँ उसने किया है। बट नाउ ही कैन नॉट कंट्रोल ओशियन फ्लो, लेकिन वो ओशियन के फ्लो को, मतलब समुद्र के फ्लो को नहीं रोक सकता। मतलब वो अर्थ पर कंट्रोल कर सकता है लेकिन शी पर नहीं, वाटर पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। ही कांट कंट्रोल द वाटर। स्टॉप बिट श्योर अपॉन द वाटरी प्लेन, द wrecks are all the dead, nor doth remain a shadow of man's ravage save his own. Means his destruction work that are made on earth and sky, nor doth remain a shadow of man's ravage save his own. Means shadow of man's ravage से means है कि woman जो personality है, woman personality है, man personality है, he is nothing बिफोर ओशियन, मतलब समुद्र के आगे। लाइक अ ड्रॉप ऑफ रेन वेन फॉर अ मोमेंट लाइक अ ड्रॉप रेन, मतलब मैन इज़ लाइक अ रेन ड्रॉप। एक जो व्यक्ति है वो एक केवल क्या है, बारिश की एक बूंद की जैसा है। किसके लिए? समुद्र के लिए, जो उसमें क्या हो जाएगा, समा जाएगा, उसमें डूब जाएगा। ही सिंक्स इनटू द डेप्थ्स विद बबलिंग ग्रोन, मतलब ही यहाँ पर किसके लिए, मैन के लिए यूज़ हो रहा है बेटा। ही सिंक्स इनटू दाई डेप्थ्स, ही इज सिंकिंग, मतलब वो डूब जाएगा। जो व्यक्ति है वो किसकी गहराई में, डेप्थ होता है बेटा गहराई, डीपली, तो विद बबलिंग ग्रोन, व्यक्ति जो है वो समुद्र की गहराई में डूब जाएगा। कैसे? बबली ग्रोन पेनफुल, बबलिंग, ही वॉज बबलिंग फ्रॉम हिज माउथ, वो अपने माउथ से बबलिंग करेगा, मतलब लैक ऑफ
लैक ऑफ ब्रीथ, मतलब उसे सांस नहीं आएगी और वो एक पानी की बूंद की तरह क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। विदाउट अ ग्रेव, नेल्ड, अनकन्फाइंड एंड अननोन, मतलब विदाउट अ ग्रेव देयर इज नो बडी हु शो द सिंपैथी विद हिम, तो वहाँ उसके लिए सिंपैथी दिखाने के लिए भी कोई नहीं होगा। अनसमन्ड, नेल्ड, अनकन्फाइंड, ना तो उसको कोई मतलब बेटा वहाँ अनसमन्ड मतलब ना उसे कोई वहाँ पहचानेगा, ना ही उसे कोई दफनाएगा, बिकॉज देयर इज नो बडी टू सेव हिम एट द शोर ऑफ शी, सो ही वॉज लाइक a drop of rain. Now stanza number 3, his steps are not upon the parts, the fields are not a spoil for him. There is, the poet wants to say that man cannot step on ocean. एक जो व्यक्ति है वो कहाँ स्टेप नहीं कर सकता, शी पर, ही कैन नॉट स्टेप ऑन वाटर, आर नॉट स्पॉइल फॉर हिम, ना ही उसको क्या कर सकता है, ही कांट डिस्ट्रॉय इट, ना ही वो उसको कोई नुकसान पहुंचा सकता है। दो डस्ट अराइज एंड शेक हिम फ्रॉम द वाइल्ड स्ट्रेंथ ही वाइल्ड्स, ही कैन नॉट कंट्रोल ऑन वाटर एंड he feels extremely unpleasant when he destruct the works of the ocean. जब वो ओशियन को कोई नुकसान पहुंचाएगा, जब वो सी को कोई नुकसान पहुंचाएगा तो काफ़ी क्या महसूस करेगा, अनप्लीजेंट महसूस करेगा अपने आप को। फॉर अर्थ डिस्ट्रक्शन दो डोस्ट ऑल डेस्पाइट, मतलब उसने अर्थ पर इतना डिस्ट्रक्शन किया, इतना विनाश किया है कि जो ओशियन है वो उससे क्या करता है, डेस्पाइस मीन्स होता है हेट करना, वो उससे हेट करता है। स्पर्निंग हिम फ्रॉम दाई बोशम टू द स्काइज एंड सेंड्स हिम शिवरिंग इन प्लेफुल स्प्रे। इट मीन्स हियर द पोइट वांट्स टू से ही वॉज टर्निंग अवे फ्रॉम द बोशम ऑफ द स्काइज, मतलब अर्थ से उसने आकाश तक अपने डिस्ट्रैक्शंस वर्क को करके दिखाया है, उसने कंट्रोल किया है अर्थ से स्काई तक, बट ही कांट कंट्रोल ऑन वाटर। एंड हॉलिंग टू हिज गॉड्स, और क्या हो जाएगा वो, हॉलिंग मीन्स बेटा ही सिंक्स इन द डेप्थ ऑफ वाटर, वह पानी की गहराई में डूब जाएगा, और क्राई फॉर हेल्प एंड ही वॉज क्राई फॉर हेल्प, तो वो हॉलिंग मीन्स होता है सहायता के लिए चिल्लाना, वो सहायता के लिए बोलेगा। टू हिज गॉड्स, अपने परमात्मा से। वेयर हैप्पली लाइज, बट बाई चांस वहाँ पर कोई भी नहीं हुआ, देयर वॉज नो बडी टू हेल्प हिम। हिज पैटी होप इन सम नियर पोर्ट और वे, उसकी होप रहेगी, ही वॉज होपिंग दैट देयर वॉज सम बडी ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, ऑन द बैंक ऑफ वाटर, बट देयर इज़ नो बडी टू हेल्प हिम। उसकी होप रहेगी, पोर्ट मीन्स होता है बेटा बंदरगाह, तो शायद कोई किनारे पर हो जो उसकी हेल्प कर सके, बट देयर वॉज नो बडी टू हेल्प हिम, लेकिन वहाँ पर कोई भी उसकी सहायता करने वाला नहीं होगा। एंड डैसेस्ट हिम अगेन टू अर्थ देयर लेट हिम ले, और वापस उसको कहाँ फेंक दिया जाएगा, थ्रो कर दिया जाएगा, वहीं अर्थ पर, देयर लेट हिम ले, जहाँ पर वो था। नाउ नेक्स्ट स्टेंजा, इन नेक्स्ट स्टेंजा द पोइट वांट्स टू से दैट द ऑर्नामेंट्स विच थंडर स्ट्राइक द बॉल्स, ऑर्नामेंट्स आर्मी वीपन्स, जो आर्मी के वीपन्स हैं, औजार हैं, वीपन्स हथियार, आप सभी जानते हैं, यू नो वेरी वेल द मीनिंग ऑफ ऑर्नामेंट्स वीपन्स। द पोइट वांट्स टू से दैट ही हैड मैनी वीपन्स, ही हैज़ मैनी वीपन्स विच थंडर स्ट्राइक द बॉल्स, जो बड़ी बड़ी दीवारों को भी क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, और रॉक बिल्ड सिटीज़ बिडिंग नेशन क्वैक एंड मोनार्च ट्रेम्बल इन देयर कैपिटल्स, उन वीपन्स की सहायता से जो मोनार्च आर किंग, तो जो वीपन्स की हेल्प से किंग जो है वो अपनी कैपिटल्स को भी क्या कर देते हैं, डरा कर रखते हैं, लोगों को डराते हैं, मतलब उन्हें अपने कंट्रोल में रखते हैं। डराने से मीन्स यहाँ है दे कैन कंट्रोल ऑन द कैपिटल्स, वो अपनी प्रजा पर क्या करते हैं, कंट्रोल रखते हैं बाई वीपन्स, हथियारों से। द ओक लेविथेंस हुज रिप्स मेक, ओक लेविथेंस मीन्स बेटा शी ड्रैगन, समुद्री ड्रैगन जो है उसके लिए बोला जा रहा है। तो इट इज़ वेरी पावरफुल, देयर क्ले क्रिएटर द वेन टाइटल टेक, और लेकिन क्ले मीन्स बेटा बट टॉय, तो देयर क्ले क्रिएटर द वेन टाइटल टेक सॉरी, तो यहाँ पर हियर द पोइट वांट्स टू से ही कैन ब्रेक दीज ऑर्नामेंट्स
है ना। दीज ऑर्नामेंट्स लाइक अ टॉय, मतलब इन सारे ऑर्नामेंट्स को एंड सी ड्रैगन को जो वाटर है वो एक पल में फॉर अ मोमेंट ही कैन ब्रेक लाइक अ टॉय, वो एक खिलौने की तरह इसको तोड़ देगा। ओ लॉर्ड ऑफ द एंड आर्बिटर ऑफ वॉर, आर्बिटर बोलते हैं पर्सन हु सेटल डिस्प्यूट्स, मतलब एन अथॉरिटी, किसी को देखने वाला। तो जो लॉर्ड हैं, अथॉरिटी हैं, अ पर्सन है हु सेटल डिस्प्यूट्स, these are thy toys and as the snowy flake they melt into the ईस्ट waves, ये सब उसकी लहरों में आकर, ईस्ट मीन्स होता है बेटा मिक्स होना, मिल जाना, क्लोज हो जाना। तो यहाँ पर स्नोई फ्लॉक है मतलब बर्फीली जो चट्टाने हैं, कोई भी बीपन है, कुछ भी है, वो इन द डेप्थ ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, नथिंग, सब कुछ क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, सबको वो क्या कर देगा, पल भर में नष्ट कर देगा, इन फ्यू सेकंड सब कुछ बर्बाद कर देगा वो। विच मेयर अलाइक द आर्मडाज प्राइड एंड और स्पॉइल द ट्रैक फायर, देयर आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइड ऑफ पावर। One is a group of ships, there are 130 ships, there is a war to French, यहाँ पर एक वार की कहानी के बारे में बताया गया है। जो आर्मडाज हैं वो ग्रुप ऑफ शिप्स है, देयर इज़ 130 शिप्स, इसमें 130 शिप थे और ये फ्रेंच के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी तब की बात है। तो उसके प्राइड को भी शिप ने क्या कर दिया, ओशियन ने क्या कर दिया था, चूर कर दिया था। और स्पॉइल्स ट्रैफिकल, और यहाँ पर ये बैटल है, ट्रैफिकल एक बैटल का नेम है कि युद्ध का नेम है। नेक्स्ट स्टेंजा, दाई शोर्स आर एम्पायर चेंज्ड इन ऑल शेप दी, एशिया, ग्रीस, रोम, कैथेस, व्हाट आर दे, मतलब ये दीज आर द नेम्स ऑफ सिटीज़। तो देयर द राइटर वांट्स टू से कि ये सारे जो एम्पायर्स हैं जिन्होंने एशिया में, ग्रीक में, रोम में, कैथेस में रूल किया, मतलब किंगडम को चलाया, दे ऑल ओबे द पावर ऑफ शी, वे मतलब सभी जो थे वो समुद्र की पावर को क्या करते थे, मानते थे, ओबे करते थे। दाई वाटर्स वॉस्ट एम पावर वाइल दे वर फ्री, जब तक उन्होंने वाटर के ओवेस को, मतलब जब तक उन्होंने उसकी पावर को माना तब तक पानी ने, वाटर ने उनका क्या दिया, साथ दिया, वे उसकी तरफ से फ्री थे। एंड मैनी आर टायरेंट सिंस देयर शोर्स ओबे द स्ट्रेंजर स्लेव और शेवेज देयर डिके, बट जब वो अनकंट्रोलेबल हो गए, मतलब उन्होंने वाटर की जो पावर को छेड़ उससे क्या किया, उन्होंने वाटर की पावर को क्या किया बेटा, डिस्टर्ब किया, उसको अफेक्टेड करना शुरू किया, वाटर्स को अफेक्ट करना शुरू किया। तो वहाँ पर वाटर ने उनको अपनी क्या दिखा दी, पावर शो कर दी। द स्ट्रेंजर स्लेव और स्वेवेज देयर डिके, अनकंट्रोलेबल पर्सन की तरह वो वर्क करने लगे, तो वाटर ने भी उनको अपने पावर को शो किया। हैज़ ड्राइड अप रियलिम्स टू डेजर्ट्स नॉट शो दो, मतलब उसने भी उन शहरों को, उन कंट्रीज़ को क्या बना दिया, डेजर्ट बना दिया। मतलब पानी, वाटर इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस, ये बहुत ही यूजफुल है, बट देयर इज़ आल्सो नेगेटिविटी इन द फॉर्म ऑफ वाटर। पॉजिटिविटी के साथ साथ इनमें नेगेटिविटी भी होती है, तो जब तक हम इनको यूज़ करते हैं तब तक ये हमारे लिए कंफर्टेबल है, बट व्हेन वी मिस यूजेज इट, जब हम उनका मिसयूज़ करने लगते हैं वाटर से, व्हेन वी मिसयूज़ द नेचर, जब हम प्रकृति से मिसयूज करने लगते हैं, तो इट कैन डिस्ट्रॉय अस, तो ये हमें क्या कर देता है, हानि पहुंचा देता है, हमें बर्बाद कर देता है। अनचेंजेबल शेप टू दाई वाइल्ड वेव्स प्ले, मतलब जो वाटर वेव्स हैं वो अनचेंजेबल है, इट मीन्स वाटर इज अनचेंजेबल, मतलब पानी का जो फॉर्म है, पानी का जो रूप है, जो पहले था वो अभी भी है, ये चेंज नहीं हुआ। टाइम राइज टू रिंकल, रिंकल मीन्स होता है बेटा जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे चेहरे पर रिंकल्स आने लगती हैं, झुर्रियाँ आने लगती हैं, बट पानी में कोई चेंजिंग नहीं हुई। ऑन दाइन एज्योर ब्लो, एज्योर बोलेंगे फॉरहेड को, ब्रो आईब्रो होता है, तो हर चीज़ में चेंजिंग आ जाती है, टाइम स्पेंड होने पर हर चीज़ चेंज होती है, बट वाटर इज़ नॉट चेंज। सच एज क्रिएशंस डॉन बिहेल्ड दो रोलेस्ट नाउ, ऐसे सारी क्रिएशन डॉन बोलते हैं बेटा एट अर्ली टाइमिंग ऑफ मॉर्निंग, तो क्रिएशन को जिस टाइम बनाया गया, क्रिएशन जब हुआ वाटर का, उस टाइम जैसा था वाटर आज भी सेम वैसा ही, देयर इज़ नो चेंजिंग इन वाटर। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, दो ग्लोरियस मिरर वेयर द ऑलमाइटीज फॉर्म
ग्लासेस इटसेल्फ इन टेम्पेस्ट इन ऑल टाइम, मतलब हर समय जब तक रूल रहा, एम्पायर्स ने साम्राज्य किया, तब तक पानी ने भी उनको क्या दिया, वाटर ने भी उनको क्या की, हेल्प की। काल्म और कन्वर्स्ड, मतलब क्या रहा, ये पीसफुल रहा, शांत रहा। इन ऑल टाइम मीन्स हर सीजन में, हर समय उसने उसका साथ दिया, मतलब ग्लोरियस बनकर। मिरर व्हेन द ऑलमाइटीज फॉर्म, ऑलमाइटीज मीन्स पावरफुल, तो जो एम्पायर्स थे जिन्होंने पावरफुल होकर अपना वर्क किया, रूल ऑन द किंगडम किया, मतलब किया, राज्य किया, तब तक इसने, वाटर ने, शी ने भी उसका साथ दिया, शी ओबे हिम। काल्म और कन्वर्स, मतलब शांत रहा, शेकन अप, कन्वर्स मीन्स होता है शेकन अप। इन ब्रीज और गेल, मतलब ब्रीज। इन काल्म पीस, इट मीन्स पीस, और गेल स्ट्रॉन्गनेस, मजबूती के साथ, और स्टॉर्म, और तूफान भी कभी कभी आ जाते थे। आइशिंग द पोल, चट्टानों का, बर्फीली चट्टानों का पिघलना। और इन द टॉरिड क्लाइमेट वेदर ऑफ अ रीजन, मतलब किसी भी वेदर में हो, रीजन का कोई भी मौसम हो, कोई सा भी टाइम हो, कभी भी वाटर ने उनको डिस्ट्रक्शन की ओर नहीं किया। डार्क, हैविंग, बाउंडलेस, एंडलेस एंड सबलाइम। सबलाइम मीन्स डिवाइन, मतलब जो वाटर है वो क्या है, बाउंडलेस है, एंडलेस है, उस पर किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं है और उसका कोई अंत नहीं है। ये क्या है, डिवाइन है, दैवीय है। द इमेज ऑफ एल्टर्निटी, द थ्रोन ऑफ द इनविजिबल, इवन फ्रॉम आउट ऑफ स्लाइम। द मोनेस्टर्स ऑफ डीप आर मेड ईच जोन ओवेज दी, दो ghost, fourth dread, formless alone. So here the poet wants to say that the image of eternity, the throne, जो इमेज बनी हुई थी यहाँ पर पावरफुल ऑलमाइटी की, पावरफुल किंग्स की, वो इनविजिबल है, मतलब वही बनी हुई है जैसी है। देयर इज़ नो चेंजिंग इन द फॉर्म ऑफ वाटर और इन द फॉर्म ऑफ शी, बट मोनेस्टर्स ऑफ डीप आर मेड, बट जो मोनेस्टर्स हैं, जो किंग्स हैं, उन्होंने जब इसके साथ क्या किया, इसको मिसलीड किया, उसको मिसयूज किया, तो इसने भी अपनी फॉर्म को दिखाया। और एक्सटेंडिंग डीपली फॉर्म फेथुमलेस एलोन मीन्स यहाँ पर ये अकेला रह गया। एक्सट्रीमली डीपली, ये बहुत ज़्यादा डीप है। इट इज़ द लास्ट स्टेंजा, एंड इन दिस स्टेंजा द पोएट says about the positivity of the ocean. In other stanzas, the poet tells us about the power of ocean, but in this stanza, the poet clears the positivity of the ocean. एंड आई हैव लव्ड दी ओशियन एंड माई जॉय, मतलब यहाँ पर जो राइटर हैं वो बता रहे हैं कि मैं ओशियन से क्या करता हूँ, प्यार करता हूँ, समुद्र से प्यार करता हूँ अपनी खुशी के लिए। ओ यूथफुल स्पोर्ट्स वाज ऑन दी ब्रिज टू बी बॉर्न लाइक दी बबल्स ऑन वर्ड्स फ्रॉम अ बॉय। बॉयहुड की कहानी बता रहे हैं, जब वो छोटे थे, व्हेन ही वाज चाइल्ड ही वाज नेचर लवर, और वो किस तरीके से यहाँ पर स्पोर्ट्स किया करते, किस तरीके से खेला करते थे समुद्र पर। आई वॉन्टेड विद दाई ब्रेकर्स, मतलब ये इसके किनारों तक खेलता था, एक किनारे से दूसरे किनारे तक। बैंक ऑफ द शी, बैंक ऑफ द रिवर, दे टू मी वर अ डिलाइट एंड इफ़ आई फ्रेशनिंग सी, मतलब शी के साथ खेलने में, पानी के पास खेलने में, शी शोर पर खेलने में मुझे बहुत ज़्यादा फीलिंग होती थी, प्लेजर की, मैं बहुत खुश होता था, हैप्पीनेस मिलती थी मुझे। मेड डैम अ टेरर ट्वाइस अ प्लीजिंग फियर, मतलब मैं कितना भी उसको क्या करता था, अफेक्टेड करता था, बट ही वॉज फीलिंग हैप्पीनेस। मुझे कभी भी, आई हैव नेवर फील एफ्रेड, आई हैव नेवर फील फियर फ्रॉम वाटर, मैंने कभी वाटर से, पानी से कभी डर को महसूस नहीं किया। फॉर आई वॉज एज इट वर अ चाइल्ड ऑफ दी, मतलब यहाँ पर जो राइटर हैं, हियर द राइटर वांट्स टू से दैट लाइक अ चाइल्ड आई वांट टू फील एन्जॉयमेंट, आई वांट टू फील प्लेजर इन शोर एट द शोर्स ऑफ शी, मतलब एक बच्चे की तरह ही, जैसा मैं बचपन में फ़ील किया करता था वैसा ही मैं अभी भी समुद्र के किनारों पर फील करना चाह रहा हूँ। एंड ट्रस्टेड टू दाई बिलोज फॉर एंड नियर, आई ट्रस्टेड इन शीज, मतलब मैं समुद्र में उतना ही विश्वास करता था एज आई ट्रस्ट इन माई पेरेंट्स, जितना मैं अपने पेरेंट्स से, माता पिता से, अपने से प्रेम करता था, ट्रस्ट करता था, उन पर बिलीव करता था, उतना ही मैं समुद्र पर भी करता था।
एंड लेड माई हैंड अपॉन दाई मेन, मेन बोलते हैं बेटा MANE मेन, हेयर्स ऑफ हॉर्स, मतलब जैसे लाइक आई कंट्रोल द हॉर्स एंड राइड ऑन इट, लाइक आई वांट टू टच, आई वांट टू होल्ड द वाटर इन माई हैंड, मतलब जैसे मैं हॉर्स के बालों को पकड़ के उस पर घुड़सवारी कर सकता हूँ, उसी तरीके से मैं पानी को अपने हाथ में लेकर क्या करना चाहता हूँ, उसको बाउंड करना चाहता हूँ, उसको पकड़ना चाहता हूँ, होल्ड करना चाहता हूँ, एज आई डू हियर the poet wants to say that he wants to hold the water in his hand like he was riding to hold the hairs of a horse. So here the poet in this story, in this poem, the poet wants to say that that nature has affected the human life if he destroy the nature, मतलब यदि हम मानव जो हैं, यदि हम नेचर से अगर नेचर को मिसयूज करेंगे, नेचर में डिस्ट्रैक्शन करेंगे, तो नेचर भी हमें क्या देगा, उसकी नेगेटिविटी शो करेगा, है ना। और यदि हम इफ़ वी फॉलो द रूल्स ऑफ नेचर, यदि हम फॉलो करेंगे रूल्स को, नेचर को, तो हमें वी कैन टेक द सोर्स ऑफ बेनिफिट्स, तो हम इससे नेचर से जो जितने भी हमें फ़ायदे हैं, जितने भी हमें बेनिफिट्स हैं, वो हम नेचर से ले सकते हैं। सो वी ऑलवेज लिव फेथफुली, ट्रस्टेबल, बिलीवेबल विद नेचर, इसलिए हमें हमेशा नेचर के साथ फेथफुली और ट्रस्टफुली रहना चाहिए। थैंक यू फॉर टुडे बेटा, एंड थैंक यू फॉर दिस वीडियो।